Students, myself Saboni Dhara, and today my session is going to be start with a new syllabus with a new standards. So first of all, congratulations to all my 11th standard AOM batch, those who got promoted from 11th standard to 12th standard. So today my topic is about paper 2, okay, in which this PDF textbook I have allotted you all in the AOM group. So over there, what you need to do, you need to download that and keep aside with you, and also you can take out the printout. I will be giving you one person's number जो कि हमारे वर्तक कॉलेज के नीचे आपको पता ही रहेगा, काउंटर में ज़ेरॉक्स कॉपी के मशीन्स हैं, उनका नंबर दूंगी मैं आप लोगों को. इफ़ यू वांट प्रिंट आउट ऑफ दिस ऑल PDF थियोरी पेपर्स तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. साथ ही साथ में इफ़ ये पॉसिबल नहीं है तो आप PDF भी यूज़ कर सकते हैं जब तक ऑफलाइन नहीं होता है. एंड बच्चों को अगर दिक्कत होती है, PDF में से नहीं हो रहा है पढ़ना लिखना सॉल्व करना, बिकॉज इट इज़ ऑल प्रैक्टिकल एंड अकाउंटिंग पेपर्स, so you all can do one more thing कि you can refer to your last year's friends. Okay, so if you want any contact number, I will going to give those contact number to CR and they will going to help you out. So fine, this was the helping for the textbook of AOM paper 1, 2 and 3 theory papers. So kindly download it. I have already sent you all in the AOM group of the college. So kindly refer those. And I hope so those who are right now with me in Google Meet, they are opened their textbook in front of them. So without wasting time, let's start with the session, that is paper 2. And in paper 2, the very first chapter over here is depreciation accounting. So what do you mean by depreciation accounting? I will let you know in today's introduction of paper 2. So students, what do you mean by depreciation? Depreciation means the value of the assets is going to be decreased because we are using that assets from years, from days, from several years, and due to which the cost of that particular assets got reduced. So this term is called as what? Depreciation. So students, इसको मैं हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ. डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आज एक बेंच खरीदा, ठीक है, इट्स कॉस्ट इज़ 5000. मैं 5000 में मैंने वो खरीदा बेंच. लेकिन ये जो बेंच मैंने ख़रीदा है, इसको मैं 2 साल अच्छी तरह से मैंने यूज़ कर लिया है. ये बेंचेस के ऊपर मेरे स्टूडेंट्स बैठते थे, दे यूज़ टू सॉल्व द सम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड फिर 2 साल के बाद मुझे लगा कि कुछ अलग सा एक बेंच लेना चाहिए और ये जो एग्जिस्टिंग बेंच है इसको बेच देना चाहिए. सो मैंने लिया था 5000 रुपये में एक बेंच, सिर्फ एक बेंच, ओके. लेकिन अभी जब भी मैं उनको बेचूंगी तो मुझे 5000 मिलेगा क्या? नो, डेफिनेटली नॉट. आई विल नॉट गोइंग टू गेट 5000 एग्जैक्टली. क्यों? क्योंकि मैंने 2 साल पहले मैंने ख़रीदारी की थी 5000 में और ये 2 साल तक
मैंने उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किया है, यूज़ किया है, इसीलिए उसका पॉलिश भी निकल गया रहेगा, वो थोड़ा सा बुढ़ा भी हो गया रहेगा वो बेंच, राइट, थोड़ा सा खिली वगैरह निकल आया रहेगा। सो इस वजह से मुझे एग्जैक्टली 5000 तो नहीं मिलेगा, लेकिन लमसम अमाउंट 1500 ज़रूर मिलेगा शायद से। सो इतना जो डिडक्शन हुआ है 5000 में से डायरेक्टली 1500, ओके। सो इसी को क्या बोला जाता है? डेप्रिसिएशन। ये जो बीच में जो अमाउंट आपका कम हो रहा है उसको क्या बोला जाएगा? डेप्रिसिएशन। एंड डेप्रिसिएशन इज nothing but it is a gradual and permanent fall or decline or decrease in the value of the fixed assets. We are just talking about the fixed asset, don't you ever forget this. Fixed assets उसको बोला जाता है जिसे हम देख पाते हैं, उसको टच कर पाते हैं, उसको यूज़ कर पाते हैं और जो बहुत सालों तक हमारे साथ स्टिक रहता है, हमारे साथ रहता है, उसको बोला जाता है फिक्स्ड असेट्स. So always try to understand this all language of accounting. So ये था नॉर्मल सा एग्जाम्पल देके आपको डेप्रीसिएशन के बारे में समझाना. ओके, सो नाउ वी विल गो अहेड एंड we will going to see the meaning and the definition which is given in your book, and which is actually very very important because इसमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, ऑब्जेक्टिव्स आ सकता है, फ्रेजेस आ सकता है, ट्रू और फॉल्स आ सकता है. सो थियोरी इज़ एक्चुअली वेरी मच इम्पॉर्टेंट. थियोरी आपने अगर दिमाग में एकदम फिट कर लिया तो आप सोते हुए भी आंसर दे पाओगे, आप बिना प्रैक्टिस किए भी आंसर दे पाओगे. ओके, सो टेक द थिंग्स वेरी लाइट एंड वेरी ईजी. Accounts is extremely easy if you will going to keep your concentration and interest in it. Okay, so let's start with the meaning. So meaning, depreciation is a gradual and permanent fall, decline or decrease in the value of fixed assets over the period of time due to its continuous use, wear, tear and evolution of time. So यहाँ पे क्या बोला है फर्स्ट लाइन में कि डेप्रीसिएशन क्या है? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ ग्रेजुअल एंड परमानेंट फॉल. वो होने ही वाला है. से फॉर एग्जाम्पल यू हैव टेकन अ मोबाइल फ़ोन ऑफ ₹12,000. अभी 12,000 तो बहुत जाहिर सी बात है, स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं 12,000. भले वो कमाते हैं नहीं है वो जाने दो, लेकिन अच्छा मोबाइल हाथ में चाहिए, एंड्रॉयड वाला जिसमें सारे फैसिलिटीज़ हैं, और होने भी चाहिए बिकॉज ऑनलाइन सेशन तभी कंप्लीट होता है, राइट. सो सोचो आपने 12,000 का क्या किया है? परचेज़ किया है मोबाइल फ़ोन. आज का तारीख क्या रहेगा? आज का तारीख है 2 जुलाई 2021. एंड इसको अभी 2-1 हफ्ता आपने यूज़ किया एंड देन यू स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ अ न्यू एंड अनदर ब्रांड ऑफ मोबाइल, और आपको ये पुराना वाला जो मोबाइल है वो बेचना है विद इन अ मंथ. फिर भी बच्चों आपको क्या 12,000 मिलेगा? नो, आपको 12,000 नहीं मिलेगा, नॉट एट ऑल. अगर आपने आज परचेस किया है 12,000 में और आपने कल बेचने की कोशिश किया, फिर भी आपको 12,000 नहीं मिलेगा बेचने के लिए. आपको 10,000, आपको 9,000 में ही मिलेगा. क्यों? मैंने अभी आप लोग क्वेश्चन करेंगे वाई. मैंने तो कल ही लिया था, एक दिन में थोड़ी ना इतना घट जाता है बच्चों. ये जो घटता है दैट इज़ ओनली कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन. ये क्यों फॉल होता है, क्यों डिक्लाइन होता है इसका अमाउंट एंड वैल्यू फिक्स्ड असेट्स में? क्योंकि आप कंटिन्यूसली यूज़ किए हैं. भले ही आपने यूज़ उतना नहीं किया, हाथ नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी वो क्या हो जाता है?
सेकेंड हैंड हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो वैल्यू है वो डायरेक्टली नीचे आ जाता है, गिर जाता है. सो दैट इज़ वाई it is to be noted that depreciation is a continuous and permanent decrease in the quantity, quality and value of fixed assets. ये क्या हुआ है? परमानेंट डिक्रीज होता है क्वांटिटी में, क्वालिटी में एंड वैल्यू ऑफ इट्स फिक्स्ड असेट्स. आपने किया रहेगा, जैसे कि मोबाइल आप पुराने एक्सचेंज करते हैं, पुराना ऑनलाइन में हम लोग ऐसे ही करते हैं, इनफैक्ट मैंने भी किया है. पुराना मोबाइल मैंने एक्सचेंज किया है. क्या किया है? एक्सचेंज किया है नए मोबाइल के साथ. सोचो, मैंने पुराना मोबाइल मेरा था एक्चुअली 17,500 का, बट दैट वाज अ सैमसंग. जब भी मैंने ये 17,500 का मैंने मोबाइल लिया था, आई एम टॉकिंग अबाउट 2018 की बात है. सो आई हैव यूज्ड टिल 2020 ओके, एंड उसके बाद मैंने एक मोबाइल लिया. लेकिन मैंने पहले ओल्ड वाले का चार्ज देखा कि उसका रेट क्या है मार्केट में. सो इट वॉज कॉस्ट अराउंड 5,000 बिकॉज दैट वॉज अ वेरी गुड कंडीशन. मेरा मोबाइल का अच्छा कंडीशन था, मैंने कवर ववर से अच्छी तरह से लगाया था, कहीं से भी कुछ भी डैमेज नहीं दिख रहा था, एंड इट वॉज स्मूथली वर्किंग. सो 5,000 वॉज माई एक्सचेंज रेट, एंड जो दूसरा मोबाइल था उससे वो क्या हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है, एंड वैसे ही मर्ज करके आप नया एक मोबाइल लेते हो. ये आप लोगों को पता ही रहेगा. यू ऑल आर टेक्नो स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं, आज के जनरेशन के स्टूडेंट्स हैं. सो ये तो आपको किया ही रहेगा आपने लास्ट 2 years में, और अगर नहीं भी किया रहेगा तो ऐसा भी होता है, ये भी जान लीजिए. सो ऐसा ही है, यही एग्जाम्पल मैंने जानबूझ के दिया है ताकि आपको डेप्रिसिएशन का मतलब समझ में आ जाए. सो नाउ मूविंग अहेड, द वर्ड डेप्रिसिएशन हैज़ बीन डिराइव्ड. मतलब ये जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से आया है, और वो लैटिन वर्ड क्या था? डेप्रिटियम. उसको क्या बोला जाता है? डेप्रिटियम. ओके, डेप्रिटियम. उसका मतलब क्या होता है? डिक्लाइन इन द वैल्यू. यानी कि डिक्लाइन का मतलब है नीचे गिर जाना. ओके, सो कम हो जाना आप बोल सकते हो इन द वैल्यू. So depreciation is a loss on account of a gradual and permanent reduction in the value of fixed assets. So it is nothing but it is a loss. Obviously मैंने 12,000 में कुछ भी ख़रीदा है बेंचेस वगैरह, लेकिन वो 12,000 का बेंचेस मुझे नहीं मिलेगा 5 साल के बाद. मुझे ऑब्वियसली 2,000 मिलेगा, नहीं तो 3,000 मिलेगा. सो इतना जो लमसम अमाउंट कम हो रहा है, सो दैट इज़ नथिंग बट कॉल्ड अ डेप्रिसिएशन. I think you all got the concept very clear. Now moving ahead, they have given 2 more professors who have defined the definition. That is according to R.N. Carter. Professor R.N. Carter, उन्होंने ये बताया है depreciation is a gradual and permanent decrease in the value of an asset from any cause. And second, अकॉर्डिंग टू ICMA इंग्लैंड, यानी कि ये इंस्टीट्यूट है, डेप्रिसिएशन इज़ द परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन असेट्स ड्यू टू यूज़. क्यों उसका वैल्यू कम होता है? क्योंकि हम लोग यूज़ करते हैं उसको. ओके, और नहीं तो लैप्सेस ऑफ टाइम. लैप्सेस ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? बहुत समय तक वो यूज़ किया गया था. इसीलिए जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर देखना चाहते हो, एक छोटा सा एग्जाम मैं बताती हूँ. एग्ज़ाम्पल, पुराने ज़माने का जो ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, हैव यू सॉ दैट ब्लैक एंड वाइट टीवी? वो कैसा होता था? वो अलग होता था, इज़न्ट इट? वो अलग ही एक उसका कंसेप्ट रहता था. पीछे बहुत बड़ा डब्बा रहता था, राइट? एंड उसमें इनफैक्ट रिमोट कंट्रोल भी नहीं होता था. वहाँ पे जाके 1-2 स्विचेस को ऐसे राउंड मिलता था, उसको घुमाना पड़ता था, तब जाके चैनल्स चेंज होता था. सो दोज आर ओल्ड फैशन. लेकिन वही टीवी अगर मैंने आज के ज़माने में बेचा भी तो मुझे एक्चुअली कुछ नहीं मिलेगा. एक्चुअल में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसको मैं बेचूंगी वो भी
थोड़ी ना यूज़ करेगा और थोड़ी ना वो किसी और को बेचेगा. नो, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट. सो इसको बोला जाता है लैप्सेस ऑफ टाइम, मतलब बहुत समय हो चुका है and then too you are unable to do it. So because of the lapses of time, the value got the value got decline of the assets. So thus depreciation means the decline in the book value of assets. It is a loss for the business. This loss must be recorded in the books of accounts. Otherwise, the profit and the losses account and the balance sheet of the business will not show a true and fair view of the state of affairs of the business. So, अगर ये वैल्यू हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग का बैलेंस शीट टैली नहीं होगा. अभी आप लोग बोलोगे बैलेंस शीट का मतलब क्या है. हम जस्ट एक फर्स्ट लेक्चर में है पेपर 2 के. सो डोंट वरी, वहाँ पे आगे जाके आपको सब समझ में आ जाएगा कि किसको ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, किसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, किसको बैलेंस शीट बोलते हैं. सो ये एक एक्चुअली फिनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ख़त्म होने वाला रहता है. तो हर एक कंपनी हर एक एसेट्स का क्या करता है, देखता है कि इसका वैल्यू कितना हुआ है, कितना हुआ है, कितना हुआ है, इतने सालों से यूज़ किया है, कितना हुआ है. तो ये सब 31 मार्च तक कैलकुलेशन जाता है और ये कैलकुलेशन कहाँ पे रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में रहता है. तो वो भी हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है. सो डेप्रिसिएशन चार्ज करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है. सो देख लेते कुछ फीचर्स डेप्रिसिएशन के. डेप्रिसिएशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. सो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. एवरी ईयर इट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड. हर एक साल फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले कैलकुलेट करना ज़रूरी है. आप बैंक्स की बात करें, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बंद होते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो ना, कोरोना की वजह से बहुत सारे बिजनेस बंद हो जाते हैं. तो जब भी आप बंद करते हो तभी भी आप क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो डेप्रिसिएशन को. सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. सिंस फिक्स्ड assets are continuously used in the business, they go on depreciating. वो क्या जाता है, डेप्रिशिएट होता जाता है, क्योंकि बिजनेस क्या है, कंटिन्यूस है. और बिजनेस रहेगा तो असेट्स तो रहेगा ही. सोचो आप एक कंपनी आपने ओपन किया है प्लास्टिक्स का, लेकिन प्लास्टिक्स को क्या आप ऐसे ही अपने हाथों से बनाओगे, नहीं. बड़े बड़े प्लांट, मशीनरी, वर्कर्स, ये सब चीज़ों को तो अपॉइंट और ख़रीदना तो पड़ेगा ही. सो सारे मटेरियल्स आप जब भी मशीनरीज़ में और या प्लांट में आप देते हो तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, एवरी ईयर आपके साथ ही रहता है. तो एवरी ईयर आप उसका पूरा यूज़ करते हो. So that is why it is said that since fixed assets are continuous used in the business, they are on depreciating. मतलब वो depreciate होता ही जाता है. It is a permanent fall in the value. So it is nothing but it is a permanent fall. ये होना ही वाला है, परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है. आप डेप्रिसिएशन को टेम्पररी यूज़ नहीं कर सकते. इट इज़ अ परमानेंट fall in the value of the fixed assets. Fixed assets such as building, plants, furnitures, etc. only depreciate. यही सिर्फ depreciate किया जाता है. It is a gradual slow process. ये एक gradual and slow process है. क्यों ये gradual and slow process है? Because जैसे कल मैंने मशीनरी ख़रीदा, आज उसका मैं depreciation चार्ज नहीं करूँगी. 1 साल हो जाएगा, उसके बाद मैं क्या करूँगी, चार्ज करूँगी. 2 साल हो जाएगा तो मैं 2 साल के हिसाब से चार्ज करूँगी. 5 साल हो जाएगा तो 5 साल के हिसाब से मैं चार्ज करूँगी. सो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेट ऑफ परचेज़ मुझे लिख कर रखना पड़ेगा. डेट ऑफ परचेज़ लिख के रखना बहुत ज़रूरी है ताकि मेरा डेप्रिसिएशन में चार्ज कर सकूँ अच्छी तरह से. So it is a gradual slow process. Assets do not fall in the value abruptly. A part of its value declines due to use. Assets depreciate for various reasons. Depreciate होता है, बहुत अलग अलग उसके reasons होते हैं. Wear and tear यानी कि use करना,
एफ्लुएंशंस यानी कि पैसेज वगैरह, टाइम ज़्यादा हो गया रहेगा। एमोटराइजेशन, डिप्लेशंस, एक्सीडेंट्स, ऑब्सोलेंसेस, आउट ऑफ फैशन हो जाता है। सो ये सारे कारणों के वजह से यहाँ पे होता है। डिप्लेशन का मतलब है कम हो जाना, घिस जाना, खराब हो जाना, जंग लग जाना, उसके वजह से भी उसका क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है। So these all are the main features of depreciation. So I hope so you all got the points very clearly. So tomorrow in the second lecture I will be discussing with the causes of depreciation with you all and the methods of calculating depreciation. So tomorrow's lecture is actually very important. If you will miss out, then the things will be incomplete from your point of view and you not will going to score that good marks which I am expecting from you all. So that's it for today's lecture. Thank you so much for listening my lecture, watching my video. Have a great day, and yes, keep your mask on your face, keep distance, and be at home. Bye bye, take care.